Yeah, please. पुढच्या वेळेला आणखी येईल ना तेव्हा मला आठवण करून दे. तिला सांगेन तुझं काही दोघी আন্টি তুমি একটু কাছে এসো, মাইকের একটু কাছে এসো আন্টি, তোমার আওয়াজ একটু কাছে এসো তুমি। শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ 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 Now it's a Bengali Rabindranath Tagore song. রেনু আন্টি শোনা যাচ্ছে না পরিষ্কার। ও এখন হ্যাঁ এখন ঠিক আছে। ইয়েস ইয়েস এই এটা কেমনে রাখবো মাইকটা তাহলে? Can you pin it? Can you pin it in your sari pallu? তুমি ততক্ষণ একটা কিছু বলো। Okay, okay, fine. Okay, so now let me introduce to the second on my list. Her name is Manjamma Jogati. She is a transgender and a folk dancer from Karnataka. There's a famous poem by Dr. Harivansh Rai Bachchan. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. Absolutely. So this applies to this second awardee. She was a transgender, and because of that she was shunned out of her home at the age of 15. And she was sexually assaulted many times. She lived on streets as a beggar, but then finally she started learning the folk dance of Karnataka, and the then chief minister, she did so well in her field that the then chief minister, Mr. Yedurappa, made her a president of a Janpad Academy of Performing Arts. It's there in Karnataka. धीरे धीरे समय के साथ, अभ्यास के साथ उन्होंने इस फील्ड में इतनी महारत हासिल की कि आज उनको नॉमिनेट किया गया पद्मश्री के लिए. We'll see the video now of Manjamma Jogati.
गाथा बी बंजम्मा जोगती कला लोक नृत्य। Awesome. Shoma, you can stop it. It's being repeated. Wonderful. Yes. So, as you all saw, she raised many eyebrows in that platform. Otherwise, it's a very robotic and stiff, very well laid, planned session. But she did this special gesture of swirling her sari pallo and blessed our president that way. So, a lovely gesture. So, let's move to the next one. Renwanti, where are you? Yes. Are you ready with the song Yes, now? yes. Okay. So this now one is you a have- Bengali Rabindra Sangeet. Am I right? Ravindra Sangeet, yes. Very good. Okay. Bengali and in Hindi. Okay. Both languages. Yes. Come on, start. So lovely. पुराण से दिनेर कथा বলবে কি রে আয় সে চোখে দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায় পুরাণ সেই দিনের কথা বলবে কি রে আয় সে চোখে দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায় আয় আরেকটিবার আয় রে সখা প্রাণের মাঝে আয় মোরা সুখে দুঃখে কথা কব প্রাণ জোড়াবে পিতে দিন কি পাতে ঘুমু कैसे हाय वो जो देखे दिखाए मन की बातें भुलाई ना जाए एक बार आओ रे सखा प्राण में समाओ हम सुख दुख की बातें कहे हल्का होंगे मन मोरा भोरेर बेला ফুল তুলেছি গোলা বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলা মাঝে হলো ছাড়া ছাড়ি কে কথা আমার দেখা যদি হলো সকাল প্রাণীর মাঝে বিতাই দিন
की बातें भूलूं कैसे हाय वो जो देखी दिखाए मन की बातें भुलाई ना जाए से की भुला जाए भुलाई ना जाए. Very Very nice. good. Very nice, very Lovely, nice. lovely. Very nice. Thank Auntie, you, thank you. Renu auntie, please Huh? tell the Bengali words in the mic once more clearly, and then the Hindi one also. আচ্ছা We were not clear with the words. পুরানো সেই দিনের কথা Yes, हाँ, yes. भूल की रे की हाय रे ओ हाय. शेई. Yes. आप बोलिए उसकी मीनिंग बता दीजिए आप रेनू जी. हाँ, हाँ, वो जो हिंदी में बोल देते हैं. हाँ, बिल्कुल. बोल दीजिए आप रेनू जी हिंदी में. अच्छा गाना गा के कैसे बोल दे. ऐसे ही आप उसके बोलिए. मीनिंग बता दीजिए ना हिंदी में. अच्छा अच्छा वो बीते बिताई दिनों की बातें भूलूं कैसे हाय. Because I was from town ji. I was born and brought up in Burma. That's why today's program reminds me of my birthplace. That's why. बीते बिताए दिनों की बातें भूलूं कैसे हाय. वो जो देखी दिखाए मन की बातें भुलाई ना जाए. आओ सुनाई दे रहा है. हाँ सुनाई दे रहा है. आओ और एक बार आओ और एक बार आओ रे सखा प्राण में समाओ. हम सुख दुख की बातें करे हल्का होंगे मन. हम भोर भोर जो फूल चुने थे झूले बजाए बंसी गीत गाए थे बकुल के तले. अचानक हम बिछड़ गए कोई कहीं. फिर ये मिलन जो अब हो गया साथी प्राण में समाए. Oh, lovely. बहुत good. दिलीप जी नमस्ते. ज्योत्सना जी नमस्ते. छाबरिया जी नमस्ते. Good to see you all. Last time we missed you all. Lovely. Welcome back. Yes. So everyone is here now. Mr. Ganguly has come also. Yes, Mr. Ganguly is also here. We welcomed him. Very Madhumita good. has also Welcome, joined welcome. us. Welcome, Madhumita. She couldn't resist. She couldn't resist not being here. Yeah, there she is. Okay, Vani ji, welcome Vani ji. चलिए. So happy. रेनू आंटी का गाना हो गया. अभी और गाएंगे वो. Two of them she has done. Many more are there in the pipeline. Yes. रेनू आंटी आपका गाना सुनने के लिए फिर मैंने ज्वाइन किया जल्दी से. Really so sweet of you, Madhu. Where are you now? Are you in Bombay? Yes. Bombay. We are all relocating everywhere. Oh yeah. Okay. Shall we move forward? Yeah, let's move ahead. So, Madhu, to brief you, we were discussing today about Padma Shri awards. Yeah. The recent ones given by our president. So I have selected few of them. The third one is Mr. Harakela Hajabba. The name is Harakela Hajabba. He is a humble fruit seller. He is a humble fruit seller. So what happened was he was selling oranges quite a long time ago. एक फॉरेन टूरिस्ट आकर उनकी दुकान में इंग्लिश में उनसे प्राइस पूछते हैं ऑरेंजेस का. But he couldn't understand him since he had no formal education. But that was the most embarrassing moment of his life. That day he decided to open a school someday in his village. From there, from that small business of fruit selling, उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर finally अपने गांव में एक स्कूल खोला. And later with lots of government aids and foreign donations, now it has become a big school. But then how casually we say at times, isn't it, that आजकल तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है समाज में और many negative things, but when we look around, we see how common men in their own capacity are doing something or other.
and that has been proven through these awards. So let's see the video now of Harekela Hajabba. उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे, लेकिन राष्ट्रपति ने जब उनके हाथों में पद्मश्री सम्मान थमाया तो बेहद साधारण दिख रहे शख्स के कद का अंदाजा हुआ और वहां मौजूद हर आदमी ने तालियों से इसका स्वागत किया। सोमवार को साल 2020 के लिए जिन लोगों को पद्म सम्मान दिए गए उनमें से कईयों की पृष्ठभूमि बेहद मामूली है, लेकिन इनके हौसले और इनका काम इन्हें असाधारण लोगों में खड़ा कर देता है। ऐसे ही लोगों में से एक हैं कर्नाटक के हरेकाला हज्जाबा। निरक्षर होकर भी शिक्षा का महत्व समझने वाले हज्जाबा ने अपनी जमा पूंजी से बेंगलोर के पास अपने गांव में साल 2000 में एक स्कूल खोला था। पद्मश्री मिलने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग इनके बारे में चर्चा करते देखे गए। लोग इनकी बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और इनके संघर्ष की दास्तां की खूब तारीफ कर रहे हैं। दक्षिण भारत के गरीब निरक्षर फल बेचने वाले हज्जाबा ने सीमित संसाधनों के साथ जो कर दिखाया वो राज्य सरकारें और कई संगठन अक्सर मिलकर नहीं कर पाते। हज्जाबा ने फल की अपनी छोटी सी दुकान से हुई कमाई से अपने गांव के बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल बनवाया। बेंगलुरु से 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित न्यू पाड़पू गांव में साल 2000 तक एक भी स्कूल नहीं था, लेकिन 150 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले हज्जाबा ने अपनी जमा पूंजी से पहला स्कूल बनवाया। आ रहा है इसी ने साल 2012 में जब उनसे स्कूल मिली तो इस बारे में हज्जाबा ने बताया था। एक बार एक विदेशी ने मुझसे एक फल का नाम पूछा, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं निरक्षर हूँ। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा था, तब मुझे ये ख्याल आया कि गांव में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए ताकि हमारे गांव के बच्चों को कभी इस स्थिति से गुजरना ना पड़े जिससे मैं गुजरा हूँ। स्थानीय लोग हज्जाबा की इस कोशिश के लिए उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते, लेकिन हज्जाबा के लिए प्रशंसा से ज्यादा जरूरी है वो मिशन जो उन्होंने शुरू किया है। साल 2000 में जब उन्होंने इस स्कूल की शुरुआत की तब उन्हें किसी से कोई खास सहयोग नहीं मिला था। इसके बावजूद उन्होंने एक स्थानीय मस्जिद से सटे मदरसे में ये स्कूल खोला और 28 बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई का काम शुरू करवाया। जैसे जैसे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी, उन्हें बड़ी जगह की जरूरत महसूस हुई। तब उन्होंने कर्जे के लिए अर्जी दी और अपनी जमा पूंजी से स्कूल की एक इमारत बनाने की शुरुआत कर दी। हज्जाबा की इस लगन को देखकर कई लोग सामने आए और उनकी मदद में जुट गए, लेकिन हज्जाबा के लिए काम अभी खत्म नहीं हुआ था। एक स्थानीय अखबार ने तब हज्जाबा की कोशिशों के बारे में लिखा था और सरकार ने उनकी मदद के लिए 1 लाख रुपए दिए। हज्जाबा ने बीबीसी से 2012 में कहा था, मुझे सरकार की ओर से एक पुरस्कार दिया गया जिसमें मुझे 1 लाख रुपए की राशि दी गई। इसके बाद लोगों ने भी मेरी मदद के लिए पैसे भेजने शुरू कर दिए। तब से लेकर अब तक हज्जाबा को कई तरह की मदद और पुरस्कार मिल चुके हैं और आम लोग उन्हें समाज का नायक मानते हैं। पद्मश्री सम्मान ने हज्जाबा की लगन और संघर्ष की कहानी को एक बार फिर रेखांकित किया है। Superb, very good. Okay, yes. Can we also have a round of applause? Very motivating, very motivating. Very Nothing is motivating. impossible. Nothing is impossible. Yes. And the caption there was पैरों में चप्पल नहीं, हाथों में पद्म। पद्मश्री. Yes. So that's how it is. Anyway, okay, let's proceed, move ahead. Anju the ji, next- namaste. Welcome. Tara ji, namaste. Welcome. Auntie, too much phone. Renu auntie. Manna. Okay. 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 हाँ. Whose phone is this? वन कौन है उनका शायद है, I don't know. Okay. Okay. Hello. Renu auntie, you can start now. So this time the song is from the movie Anand and sung by Mukesh. Can anyone guess? The famous Anand song. Unmute yourself, Mr. Motwani. मैंने तेरे लिए No, the other one. कहीं दूर कहीं दूर कहीं जब दिन जगह। Very good. Absolutely, got it right. कहीं दूर जब दिन ढल जाए. दिन ढल जाए। Yes. You can start, Renu auntie. Yeah. ये रेडी।
कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए किसे आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, की दुल्हन बदन चुराए चुपके से कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, हल्लाए से मेरे आंखें, जब यूं ही हुई बोझल सांसें, हल्लाए बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी मचलते प्यार से छलके, कोई कोई मुझे नजर न आए, नजर न आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ के दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। दिल जाने मेरे सारे भेदे गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे, दिल जाने मेरे सारे भेदे गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे, मेरे सपने यही तो है अपनी, मुझसे जुदा ना होंगे इनके साए, इनके साए। हमारे प्रश्न पर दिल से बतारा कालमी प्रभु दिशारा, प्रभु दिशारा বাপি ছয়টা দিতে পারি না শুধু পথ খুঁজে যেতে যেতে, এই জীবন সারা, এই জীবন সারা আমায় প্রশ্ন করে নিজ তারা, কতকাল আমি প্রভু দিশাহারা, প্রভু দিশাহারা। That's Wonderful, great. wonderful. Wonderful fusion of Bengali and Hindi. Yes, What a yes, talent. Nice. Really, Very nice. really. Very creative. Thank you so much, Motwaniji. Welcome, welcome, madam. So much. Great. Okay. So to proceed, the next Padma Shri Award on my list is to Jaswanti Ben Jamna Das Popat. She is the founder of the Mahila Griha Udyog, making a papad. Everyone knows the brand name very well. Lijjat Papad. Absolutely correct. It's Lijjat Papad. So the story goes like this. In 1950, she started with just ₹80 in her hand and started this business. Today, her turnover is 1,810 crores. Wow. And she employs around 46,500 women.
they make 4 billion papads. Wow. So can't believe why we waited this long to award her with this Padma Shri award. And she is 91-year-old. Oh. Let's watch the video. Okay. श्रीमती जसवंती बहन जमुना दास पोपट, व्यापार एवं उद्योग। Yes. So this was the award to Jaswanti Jamnadas Popat. She got in the field of business, entrepreneurship. Renu aunty, the next one in your list is my all-time personal favorite, Jab Koi Baat Bigad Jaye. Wow. And again, she's singing it both Hindi and English. Okay, This great. time. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। ओ चांदनी जब टकरा देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। ओ चांदनी जब टकरा देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। If you miss the train I'm on, you will know that I'm gone. You can hear the whistle blow. 100 miles. Beautiful. 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow. 100 दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले मिले कहीं, सिलसिलाए सदियों का कोई आज की बात नहीं। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले मिले कहीं, सिलसिलाए सदियों का कोई आज की बात नहीं। Not a shirt on my back, not a penny to my name, not I can go back home this way. This
away. I can't go back home. This away. But I can't go back home. This away. Wow, lovely. 100 miles, such an old song, such an old. Done very justice to old the song. song, absolutely, yes. Wonderful. Very well done. Thank you, Renu aunty. Thank Thanks you, a thank ton. you. Yes. कौन सा पिक्चर का गाना ये बहुत दिन हुआ Daddy, daddy. ये तो डैडी हाँ यार Daddy. राइट Okay. Now moving forward, the next Padma Shri awardee on my list is K.Y. Venkatesh. He is an Indian para-athlete and a shot putter from Bengaluru, Karnataka. In 1994, he represented India at the first International Olympic Committee Athletes in Berlin, Germany. So again, he was awarded this Padma Shri Civilian Award in 2021. You will see the video and understand he's only a 4 feet 2 inches man and suffers from dwarfism. He has some ailment which has restricted his height, so which has led to dwarfism. But then, and he's awarded in the field for his contribution to sports and development. What is noticeable in video is you will see our president comes down from his stature, his stage to his height, to Mr. Venkatesh height to pin him the awards. Okay, let's watch the video. K.Y. Venkatesh, दिव्यांग खेल। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि इंसान का कद उसका शरीर नहीं बल्कि उसके कर्म तय करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनका शारीरिक कद बुलंदियां छूने में उनके आड़े नहीं आता। मंगलवार को के.वाई. वेंकटेश ने एक बार फिर ये साबित कर दिखाया। ऐसा कम ही होता है कि पुरस्कार प्रदान करने वाला शख्स पुरस्कार जीतने वाले शख्स के साथ नीचे तक उतर आए, लेकिन राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को ऐसा ही नजारा देखने को मिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पैरा एथलीट के.वाई. वेंकटेश को पद्मश्री से नवाजा। वेंकटेश ने वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स में कई मेडल जीते हैं। उन्हें स्पोर्ट्स और उसके विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया है। जब वेंकटेश को सम्मानित किया जा रहा था तो एक और दिलचस्प वाकया घटा। वेंकटेश तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे और सारी निगाहें उन्हीं पर टिकी थी। वेंकटेश स्टेज के करीब पहुंचे तो राष्ट्रपति कोविंद ने गौर किया कि छोटा कद होने की वजह से उन दोनों के बीच फासला ज्यादा है। ऐसे हालात में उन्होंने वेंकटेश से सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाने के लिए कहा ताकि वो दोनों एक ही सतह पर आ सकें। इसके बाद वेंकटेश नीचे उतरे। वेंकटेश के साथ साथ राष्ट्रपति कोविंद भी नीचे उतरे और फिर उन्हें सम्मान दिया गया। जब ये वाकया हुआ तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में बज रही तालियों की गूंज लगातार बढ़ती गई। के.वाई. वेंकटेश कर्नाटक से आने वाले पैरा एथलीट हैं और खेलों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। उनका कद 4 फुट और 2 इंच है। साल 2005 में चौथे वर्ल्ड ड्वार्फ गेम में 6 मेडल जीतकर उन्होंने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया था। वो पहले भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने गेम्स में भारत की नुमाइंदगी की। उन्होंने एथलेटिक्स और बैडमिंटन इवेंट्स में पदक जीते थे। हालांकि एथलेटिक्स में उनका करियर काफी पहले शुरू हो गया था। साल 1994 में उन्होंने पहले अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी जर्मनी के शहर बर्लिन में की। अब वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की दुनिया से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन कर्नाटक पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव का पद संभाल रहे हैं। खेलों को लेकर के.वाई. वेंकटेश का जुनून देखते ही बनता है। बोन ग्रोथ डिसऑर्डर की वजह से उनका कद सामान्य नहीं हो पाया, लेकिन इसके बावजूद छोटे कद को उन्होंने अपनी कामयाबी के रास्ते में कभी नहीं आने दिया। साल 2012 में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा साल 2009 के वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स में उन्होंने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल, जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल और बैडमिंटन सिंगल और डबल इवेंट में भी मेडल अपने नाम किए। भारत सरकार ने 26 जनवरी 2021 को उन्हें देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री देने का ऐलान किया था। Wow, amazing. So this proves again, आदमी बड़ा अपने कद या पद से नहीं होता, आदमी अपने कर्मों से बड़ा कहलाता है।
Right. Okay, so fine. With this, we come to Renu Aunty again. She'll sing a medley this time. Am I right? Which all languages, Aunty? Unmute yourself. Burmese is my mera bhasha. Okay, And fine. Yes. Hindi. Okay. A different musical evening today. Yeah, that's आओ झूमे नाच गाए आज मस्ती भरी शाम है आओ झूमे नाच गाए आज मस्ती भरी मंगलवार चारो आहे कहना आज गीता एक रानी का पैगाम है musical evening happy evening to you it's a happy musical evening happy evening to you आओ झूमे नाच गाए आज मस्ती भरी शाम है अपना दिल तो न जाने किस आएगा है अपना Everyone can sing this. Yes. न जाने everyone dance and sing. Please. हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही ना समझा हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही ना समझा बहुत बोला बेचारा न जाने किस पे आएगा आएगा देखो जी दिल लेने वाला दिल देना सीखो जी पूछो परवानों से जरा धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा पूछो परवानों से जरा धीरे धीरे जलने में कैसा मजा तुम्हें दिल देख के जल जाना सीखो जी देखो जी दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी गोरे गोरे मेरी गलियां आया करो Veera Aunty, unmute yourself. Veera Aunty. छोरे चाहे रोज बुलाया करो गोरे 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 ओ बाके छोरे कभी मेरी गली आया गोरे गोरे ओ बाके छोरे चाहे रोज बुलाया करो बहुत रोज बुलाया अच्छी अच्छी प्यार में आदत नहीं थोड़ा थोड़ा थोड़ी सी जुदाई सदा जाने दिया अच्छी नहीं तोड़ो तोड़ो जीना न तोड़ो अभी मेरी गलियां आया करो गोरे 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 ओ बाके छोरे Last song
It's a Burmese song. It's a Burmese song, and the meaning is wishing all the members of Hand in Hand a very, very happy, healthy, and long life. Oh, Oh, good, thank you good. for your wishes. Yes, please sing. Aphoji ong kakong kong mate mane o nang nikha tazambong weti bao. Aphoji ong kakong kong mate mane o nang nikha tazambong weti bao. Aphoji ong kakong kong mate mane o nang nikha tazambong weti bao. बहुत खूब, बहुत खूब. Lovely. Thank you. Thank you. Wonderful, once again. Don't wonderful. understand, it's my language, Burmese language. Very nice, very nice, very nice. I was also born in Burma. Yeah, I she left talk about Burma it, but very young age, and I forgot the language, and even I used to sing such a small age. How come you remember Renu aunty even now? The She language? recently then. I always sing. Okay. Yeah, always sing. He left Burma We have recently. programs always. Recently, yes. Okay, fine, lovely. Your idea is marvelous. To do it in this Yeah. way, yes. Brought Medley. so much enthusing into the group. Thank you so much. Lovely. Very well sung. Fine. Congrats. So Thank you, Milani. great to have you here. So we move forward. I have two more videos, so I won't speak much. Let's look at them. They are absolutely self-explanatory. And later, if we have time, I can speak. Tulsi Gowda is the next one. Yes. Tulsi Gowda. श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण। नंगे पैर, पारंपरिक धोती, खेत से राष्ट्रपति भवन तक सम्मान पाने का सफर। तुलसी गौड़ा पर्यावरण को लेकर काम करती हैं। उम्र 77 बरस है, कर्नाटक से हैं। तुलसी गौड़ा को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। कुछ लोग तुलसी को जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। वजह पौधों और जंगल की शानदार समझ। बीते 6 दशकों से सक्रिय तुलसी 30,000 से ज्यादा पौधे लगा चुकी हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब तुलसी 2 बरस की थी तब उनके पिता दुनिया से चल बसे। मां के साथ नर्सरी में पेड़ पौधों से जुड़ा काम करने से शुरू हुआ सफर 70 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद भी जारी है। ऐसे वक्त में जब धरती बचाने के लिए दुनिया के नेता एकजुट हो रहे हैं, सरकार नेताओं की कथनी करनी के फर्क को उजागर कर रही है, तब भारत के गांव की तुलसी की कहानी और सम्मान उम्मीद जगाती है। डेक्कन हेराल्ड में छपी रिपोर्ट में स्थानीय लोगों के हवाले से बताया गया है कि तुलसी वन विभाग के वन रोपण कार्यक्रम में सक्रिय रहती थी। उनके काम को देखते हुए विभाग ने उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया। 14 साल काम करने के बाद वो रिटायर हुई। उनकी पेंशन ही उनकी आजीविका का एकमात्र जरिया है। उन्हें अपने Just wait. Yes. अंदर देखा तो We'll repeat the video again. There was some technical issues. वानी जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। वानी जी ओके थैंक यू। पीडिया भी कहते हैं। वजह पौधों और जंगल की शानदार समझ। बीते 6 दशकों से सक्रिय तुलसी 30,000 से ज्यादा पौधे लगा चुकी हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब तुलसी 2 बरस की थी तब उनके पिता दुनिया से चल बसे। मां के साथ नर्सरी में पेड़ पौधों से जुड़ा काम करने से शुरू हुआ सफर 70 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद भी जारी है। ऐसे वक्त में जब धरती बचाने के लिए दुनिया के नेता एकजुट हो रहे हैं और जानकार नेताओं की कथनी करनी के फर्क को उजागर कर रहे हैं, तब भारत के गांव की तुलसी की कहानी और सम्मान उम्मीद जगाती है। डेक्कन हेराल्ड में छपी रिपोर्ट में स्थानीय लोगों के हवाले से बताया गया है कि तुलसी वन विभाग के वन रोपण कार्यक्रम में सक्रिय रहती थी। उनके काम को देखते हुए विभाग ने उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया। 14 साल काम करने के बाद वो रिटायर हुई। उनकी पेंशन ही उनकी आजीविका का एकमात्र जरिया है।
उन्हें अपने उगाए हर किस्म के पौधे के बारे में पूरी जानकारी है, उनके फायदे के बारे में और उन्हें कितना पानी चाहिए, हर चीज की जानकारी उनके पास है। उन्हें उतना ही ज्ञान है जितना किसी वनस्पति वैज्ञानिक को होता है। वो वनों के संरक्षण को लेकर लोगों में लगातार जागरूकता फैलाने का काम करती रहती हैं। तुलसी का जन्म एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ। वो कर्नाटक में हलक्की जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। महज 2 साल की उम्र में पिता को खो दिया। वो कभी स्कूल नहीं गईं। गरीबी की वजह से उन्हें बचपन में ही अपनी माँ के साथ दिहाड़ी मजदूरी का काम करना पड़ा। बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी, लेकिन कुछ सालों में ही उनके पति की भी मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने अपने लिए एक ऐसी जिंदगी बनाई जो आज पूरे देश के लिए प्रेरणा है। Awesome. Yes. We have been hearing it all throughout, isn't it? Simple living and high thinking. High thinking, yeah. So these awardees have proved it again and again. And now the last on my list is of Mohammad Sharif. It's absolutely hair-raising. Let's look at the video. Mohammad Sharif. And make it full screen. Yes. ये सोचता हूँ कि मेरे बेटे की लाश को जा रही है, तो वो मैं ये नहीं समझता कि कौन है। मैं ये समझता हूँ खून एक है, ये मेरा बेटा है। मैं इसको ले जा रहा हूँ, इसके माँ बाप को शांति मिलेगी। मेरा बच्चा जब से गया है, जब से मुझे शांति नहीं ना, मैं खाना पीना नहीं समझता। सबसे बड़ी इबादत मैं ये समझता हूँ, सब धर्म एक है, खून सबका एक है। हमारा लड़का 22 साल का था, वो गया था सुल्तानपुर और उसे किसी ने मार के बोरे के अंदर फेंक दिया। उसे लाश नहीं मिली। मुझे इतना अफसोस हुआ। पागल की तरह घूमता था और उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया कि अब ये जख्म जो है किसी को होने न देंगे। सही अल्लाह देता है, इसके लिए हम नहीं कह रहे हैं कि हम करते हैं। हम जिस दिन सोच लेंगे तो उस दिन हम नहीं कर पाएंगे। वो करा रहा है, हम कर रहे हैं। Wow. Okay. Really. What a heart-wrenching story, isn't it? Yes, yes.
Yes, So my reason for sharing these videos were that how the commonest of the common people through their deeds are making an impact into the society, isn't it? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता अगर हम उसे सही भावनाओं के साथ करें, and it will be recognized someday or other. Okay, so and it's never too late to do any good it's thing. never too Never late. too late. There is no Absolutely. age for anything. Exactly. Today Taraji posted a very beautiful video, you know, that we are really not old. We are just, you know, something. It was very, very, very beautiful, very nice. So I think age is no bar. It's just a number. It's just a number. yes. If you really want to do something, you can just stand up and do it right away, whether you have money or no money. 80 rupees Yes, also is a lot of even money. with the least of resources, Yes, least of resources. without education, people have made it Least possible. resources, no education, least clothes, no footwear. I mean, Yes. nothing is important in life. It's only your intention. It's only your intention that matters at the end of the day. So और wonderful. हम कितना कैजुअली कह देते हैं कभी कभी कलयुग आ गया है, अच्छे लोग नहीं हैं, सब अपने में व्यस्त हैं, but these examples show us that there are people to care for each other, isn't it? Yeah, that's right. And they need attention. They need attention also. Yes. It's Yes, really yes, new yes. India. It's kudos to the government for giving awards to such people. Absolutely. This is new India. They deserve it. They deserve it, They really. deserve it. Absolutely. And we are here to care for all of you. There is love all around. There is love all around. We just need to share it. Share it, exactly. That's right. That's right. That's right. That's right. Lovely session. Swati ji, lovely session. Thank you. Thanks. Very well organized. Organized, yes. And very So, nice presented also. Yeah. Wanted to share the videos with all of them. Whenever I go through something good, I feel like sharing it on this platform. Wonderful. Very good collections. Good collections. Very good. Experience. We get the inspiration from these videos. Yeah. Absolutely. Yeah, There comes my sister. Yes. The Very technical good. support. Yeah. One of the reason of picking up these videos where I'm sure हम especially in this pandemic हम news सुन Please रहे हैं show तो सब her. बुरी खबरें ही सुन रहे हैं. So पर हमारे आजू बाजू भी बहुत सारी अच्छी चीजें हर दिन होती रहती है, तो क्यों ना Right. हम let's focus on the good. Right, Let's absolutely. close our ears to the things. क्यों हम वो चीजें सुने? सही बात है. दिखाइए जरा अपनी बहन को कहते हुए. Yeah, she's here. She's here. She's very much there. कहाँ Let me मैं नहीं देख पा रही हूँ. spotlight her. 1 minute. Let's spotlight. Wait. Here she is. Here she is. Hello. God bless you. God bless you. Yeah. Thank you. Very Thank nice. you. Very Lovely. nice. These are the My two sister sisters. Both of you can drags me as smile. in when Didi drags me as in when she needs some technical support या कुछ चाहिए होता है. Otherwise she's like हम तीन हैं, हमें कोई नहीं चाहिए. We three can manage Thanks everyone. So shall we end the meet? Yes, let's end the meet. Sure. Okay. Thank Everyone you, stay everybody. Stay Yeah, safe. yeah. And love you all. Love you all. Thank you. Bye. 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 Have a Good wonderful night. evening. Thank you. Bye-bye. Good night. Bye. Bye-bye. Good Good night. night. Bye-bye. Thank you.